I am Dr. Naveedur Rahman, Professor of Medicine. Today's lecture is about bronchial asthma. In this bronchial asthma, we will first discuss the definition, then epidemiology, risk factors, pathology and pathogenesis, its how to diagnose the bronchial asthma and its management. Now the definition of the bronchial asthma. It is a chronic inflammatory disorder of the airways associated with airway hyperresponsiveness that leads to recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness and coughing. These episodes are usually associated with reversible airway obstruction. This is the diagram of bronchioles, of asthmatic bronchioles and normal bronchiole. Look at the picture and there is inflammation shown in asthmatic bronchiole with reduced bronchiolar diameter as compared to the normal bronchiole. Epidemiology. Asthma is a problem worldwide with an estimated 300 million affected individuals. Its prevalence increases in many countries, especially in children, a cause of a significant number of preventable deaths. It's a major cause of school or work absence. Factors influencing the development and expression of bronchial asthma. These are the host factors, which are genetic, atopy, airway hyperresponsiveness, lung functions in infancy, sex, obesity and rhinitis. These are the different host factors which are responsible for the development of bronchial asthma. Risk factors continue and environmental factors. Allergens, indoor as well as outdoor allergens, infections हो सकती हैं, hygiene hypothesis, occupational sensitizers, tobacco smoking, air pollution and diet. These are the different environmental factors. Pathology and pathogenesis. Asthma, inflammation, cells and mediator. This is the diagram. When an allergen comes into contact with the lungs, internal environment, the mast cell stimulation and stimulation of the mast cells and macrophages and dendritic cells leads to activation of eosinophils and neutrophils, meaning that there is an eosinophilic inflammation. It may lead to epithelial shedding, subepithelial fibrosis हो सकता है, mucus hypersecretion हो सकती है, ठीक है ना, mucus hypersecretion, vasodilatation and angiogenesis, new vessel formation, bronchoconstriction, hypertrophy and hyperplasia of the airway smooth muscles, sensory nerve activation because of the different allergens and stimulators. Asthma, inflammation, allergens, sensitizers, viruses and pollutants. ठीक है. Diagnosis, history and physical examination, pulmonary function test, other laboratory test. Questions which are considered in the diagnosis of asthma. For example, recurrent attacks of wheezing, troublesome cough especially at night, wheeze or cough after exercise, wheeze or tightness after exposure to allergens or pollutants. Does the cold go to the chest or take more than 10 days to clear? Are symptoms improved by asthma treatment? These are different questions which leads to the diagnosis of bronchial asthma, which must be asked in every patient suspected of having
asthma. The other is pulmonary function test, spirometry, peak expiratory flow rate or airway responsiveness. Pulmonary function test, spirometry, improvement in forced expiratory volume in 1 second after bronchodilators by 15% or 200 ml increase in spirometry volume of these pulmonary function. Spirometry में क्या होना चाहिए? Improvement in forced expiratory volume in 1 second after bronchodilator by 15% improvement. 15% improvement अगर हो रही है, और या फिर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट में 20% इंप्रूवमेंट हो रही है डायरनल वेरिएशन के मुताबिक, पेशेंट की डायरनल वेरिएशन मोर देन 20% चल रही है, ठीक है ना, तो आपका डायग्नोसिस हो जाएगा. या एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस वो असेस करते हैं हिस्टामिन से, मेथाकोलिन से, एक्सरसाइज करवा के, ठीक है. लेबोरेटरी टेस्ट में चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, इसमें यूजिनोफिल काउंट इज इंपॉर्टेंट, IgE लेवल्स आर इंपॉर्टेंट और सम स्किन टेस्ट आर एडवाइजेबल, ठीक है ना. चेस्ट एक्सरे इज परफॉर्म्ड, देयर इज नो डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा यूजुअली प्रेजेंट इन ब्रोंकियल एस्थमा, नो डायग्नोस्टिक, बट chest x-ray is required because to rule out the other causes of acute dyspnea, for example pneumothorax and pneumonia or other, ठीक है. How to make a diagnosis? Compatible clinical history plus either or forced expiratory volume in 1 second, first second equal or more than 15%, equal या 15% से इंक्रीज फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ब्रोंकोडायलेटर. आपने ब्रोंकोडायलेटर दिया है पेशेंट को, ब्रोंकोडायलेटर नेबुलाइज करवाने के बाद, या आपने 1 वीक ट्रायल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए हैं और उसके बाद आपने 15% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड में आपने देखी है, तो आप उसको लेबल करेंगे ब्रोंकियल एस्थमा, डायग्नोस करेंगे. या पेशेंट्स को यूजुअली वो भी रिकमेंड के वो अपनी डायरी रखें और उसमें पीक फ्लो मीटर से अपनी सुबह शाम रीडिंग्स नोट करें. अगर वो रीडिंग्स 3 या इससे ज़्यादा दिन, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के दौरान अगर वो 20% से ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, सुबह और शाम की वेरिएशन, तो आप उसको लेबल कर सकते हैं. या फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड या इक्वल और मोर देन 15% डिक्रीज हो जाए आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. ये कंपैटिबल क्लिनिकल हिस्ट्री, वो जो आपको मैंने पहले शुरू में बताया था कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने आजकल पूछने हैं पेशेंट से, और वो अगर चल के वो प्रेजेंट है, और प्लस टिपिकल क्लिनिकल हिस्ट्री के अलावा ये आपकी चीज़ें, इनमें से कोई भी आपको मिल जाती है, तो आप उसको लेबल कर सकते हैं द केस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा. मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, एजुकेशन एंड डेवलप पेशेंट डॉक्टर पार्टनरशिप. पेशेंट की एजुकेशन, क्योंकि बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म इलनेस, पेशेंट हैविंग डिजीज फॉर लाइफ टाइम, समटाइम्स इट लीड्स टू ईयर्स ऑफ एस्थमा सिम्टम्स. तो पेशेंट की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर और पेशेंट के साथ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसको आपको बताना पड़ेगा कि वो आइडेंटिफाई करे कि रिड्यूस एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स, और उसको फार्माकोथेरापी के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप असेस करें उसको, स्वेरिटी को, उसको ट्रीट करें, और फिर पेशेंट को मॉनिटर करें एस्थमा के लिए. फार्माकोथेरापी ऑफ एस्थमा. फार्माकोलॉजिकल थेरापी में 2 मेजर ग्रुप्स आएंगे, एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स, नंबर 2 कंट्रोलर्स. ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा-2 एगोनिस्ट आ जाएंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स और थियोफाइलिन डेरिवेटिव्स या थियोफाइलिन, ठीक है. ये ब्रोंकोडायलेटर्स में आया जाते हैं. कंट्रोलर्स में इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, वो भी कंट्रोलर्स में आएंगे. लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट,
इन लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट ये भी कंट्रोलर्स में आ जाते हैं, जैसे फॉर्मोटिरोल हैविंग इफेक्ट फॉर लास्टिंग फॉर 24 आवर्स और मोर, इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन कंट्रोलर्स, ठीक है। लिकोट्राइन मॉडिफायर, थियोफाइलिन, क्रोमोन्स, एंटी-IgE ड्रग्स और सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दीज आर ऑल कंट्रोलर मेडिसिन। These are the comparative daily dosages of inhaled corticosteroids. Low dose कब होती है, मीडियम कब होती है, हाई कब होती है, बेक्लामेथासोन, CFC, HFA और DPI. These are different methods for delivery of the drug to the lungs, ठीक है। इसमें बेक्लामेथासोन CFC में 200 to 500 अगर माइक्रोग्राम डिलीवर करते हैं पेशेंट को ड्रग, तो उसको लो कहेंगे, लो डोजेज। मीडियम में 500 to 1000, इस तरह हाई में मोर देन 1000। इसी तरह बेक्लामेथासोन HFA में और कम हो जाती है, 100 to 250 है, 250 to 500 मीडियम है और मोर देन 500 हाई है। बुडेसिनॉइड DPI में 200 to 600 अगर वो लो डोज में आएगी, 600 to 1000 और मोर देन 1000। इसी तरह फ्लूटिकासोन 100 to 250, 250 to 500 और मोर देन 500 इज हाई डोज, ठीक है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। रिलीवर्स मेडिकेशंस में रैपिड एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और थियोफाइलिन। दिस इज इनहेलर पेशेंट इज यूजिंग, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे इनहेलर विद स्पेसर डिवाइस है और दूसरा एक वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें कैप्सूल डालते हैं और पेशेंट इसको सक करता है और इसमें जो रिमेनिंग डोजेस वो भी आ जाती हैं, कितनी रह गई हैं, कितनी यूज करती हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्लायंस, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल दे रहे हैं या आप इनहेलर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये भी इफेक्ट करता है कि पेशेंट की कंप्लायंस पे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्रग रेजिमेंट है, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट आए, उसने बंद कर दी मेडिसिन और कंप्लायंस उसकी हार्ट हुई। इसी तरह सपोर्ट ऑफ फैमिली और हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। ट्रीटमेंट गोल्स, इसमें आपने अचीव करना है और मेंटेन रखनी है, उसकी सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। अचीव एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, मेंटेन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे तो उसका सांस फूल जाए, लेकिन मुनासिब सी एक्सरसाइज भी वो पेशेंट कर सकता हो और डेली नॉर्मल एक्टिविटीज उसकी जो सी हैं उसमें उसको डिस्निया या कफ या वीज ना आ रही हो। मेंटेन पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एज क्लोज टू द नॉर्मल एज पॉसिबल। आपको पेशेंट को प्रिवेंट एस्थमा एक्सार्सेपेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स से बचाना है। आपके जेन में होना चाहिए, गोल आपकी होनी चाहिए कि पेशेंट को एस्थमा मेडिकेशन से वो कोई स्पेशल एडवर्स इफेक्ट्स ना आ रहे हों, जैसे पेशेंट पैल्पिटेशंस की कंप्लेंट कर देते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट से, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं और फिर पेशेंट को बाद बार स्टीरॉइड की वजह से कुशिंग वाइड हो जाते हैं और एस्थमा मोर्टेलिटी इज आल्सो अ गोल। व्हाट इज कंट्रोल्ड एस्थमा? कंट्रोल्ड एस्थमा कब लेबल करना है पेशेंट, क्योंकि इसका एस्थमा कंट्रोल्ड है। डे टाइम सिम्टम्स none or less than twice per week, number 1. Number 2, no limitations of activity, no nocturnal symptoms, need for reliever none or less than twice per week, ठीक है। नॉर्मल लंग फंक्शंस, नो एक्सार्सेपेशंस, ये है जब ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी पेशेंट में जो एस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको कहेंगे ये पेशेंट इज हैविंग कंट्रोल्ड एस्थमा, ठीक है। These are different stages, mild, intermittent, mild, persistent symptoms हैं। इसमें डे टाइम सिम्टम्स और नाइट टाइम सिम्टम्स और पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को साथ रख के तो आपने एस्थमा सेवेरिटी को असेस करना होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट स्टेप्स क्या है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट स्टेप्स में आप देखें, स्टेप 1 में
अगर पेशेंट को सिम्टम्स आती हैं किसी वक्त, एज नीडेड वो बीटा 2 एगोनिस्ट ले ले, ठीक है, वो इनहेलर ले ले, बीटा 2 एगोनिस्ट ले, साल्ब्यूटामोल है या, ठीक है ना, एज नीडेड रैपिड एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें कंट्रोलर ऑप्शंस में कोई स्पेशल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेप 2 में आपने इन दोनों में से एक सिलेक्ट करनी है, या तो लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दें कंट्रोलर ऑप्शंस में, या लिकोट्राइन मॉडिफायर आप स्टार्ट करवा दें, ठीक है ना। लेकिन बीटा 2 एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग आपने एज रिक्वायर्ड पेशेंट को रिकमेंड करते रहना है उसको। स्टेप 3 में आप देखें एक चीज सिलेक्ट करनी है, या तो लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दे दें, या मीडियम और हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही दे दें, या लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लिकोट्राइन मॉडिफायर दे दें, या लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस सस्टेन्ड रिलीज थियोफाइलिन दे दें। अब इन चारों में से आपने एक सिलेक्ट करनी है, ठीक है। स्टेप 4 में आपने एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस आपने इंक्लूड करनी है, ठीक है ना। एज नीडेड रैपिड 2 बीटा 2 एगोनिस्ट वो तो चलेंगे ही, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन मीडियम और हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लिकोट्राइन मॉडिफायर्स भी दे दें, या सस्टेन्ड रिलीज थियोफाइलिन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टेप 5 में आप ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लोएस्ट पॉसिबल डोज दें, जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो लेकिन पेशेंट की सिम्टम्स ठीक हो जाए, एंटी आईजीई ट्रीटमेंट, लेकिन बीटा 2 एगोनिस्ट एज रिक्वायर्ड आपने उसको देने ठीक है। स्टेपिंग डाउन ट्रीटमेंट, आपने मेडिकेशंस 3 से 6 हफ्ते महीने के बाद आपने उसकी स्टेबिलिटी और उसकी देखनी है, असेस करनी है। अगर स्टेबल है पेशेंट तो 25 to 50% मेडिकेशन रिड्यूस करनी है। जिस भी स्टेप में है उससे पीछे आपने ले आना है। असेसमेंट ऑफ एजमा सेवेरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। पीक एक्सपिरेटिव फ्लो में अगर मोर देन 40% है तो माइल्ड टू मॉडरेट एग्जार्सर्बेशन, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दें। सैचुरेशन मोर देन 90% है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट से नेबुलाइज करवाएं। आप गुड रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, पीक एक्सपिरेटिव फ्लो आपका 70% से इंक्रीज कर गया है और रिस्पॉन्स जो सा है वो सस्टेन्ड है 1 घंटे तक, तो आपने, और कोई पेशेंट को डिस्ट्रेस भी नहीं है, तो एग्जामिनेशन टेस्ट में जो रोंकाई थे वो बेहतर हो गया, तो आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर PAF 40 to 69% है, मॉडरेट आप लेवल करेंगे, तो आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, नेबुलाइज करना है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट से। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं। गुड रिस्पॉन्स, डिस्चार्ज। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, डिसाइड ऑन एडमिशन विद इन 4 आवर्स। आपने 4 घंटे के अंदर डिसाइड करना है कि पेशेंट को आपने एडमिट करना है या नहीं, ठीक है। अगर लेस देन 40% है PEF तो आपने ऑक्सीजन नेबुलाइज करवाना है। इप्राट्रोपियम भी आपने आवरली और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आवरली या कंटिन्यूस भी आप दे सकते हैं। इसी तरह सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देंगे, कंसीडर एडजंक्टिव थेरापी, मैग्नीशियम सल्फेट और हीलियम ऑक्साइड। अगर लेस देन 25% है PEF और लाइफ, इसको लेबल करेंगे लाइफ थ्रेटनिंग। इसमें पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बाकी जो उनसे स्पायरोमेट्री इज नॉट नेसेसरी। आपने ऑक्सीजन देनी है, नेबुलाइज करना है साबा से और इप्राट्रोपियम से। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स, एडजंक्टिव थेरापी, ICU एडमिशन करेंगे और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए तैयारी रखेंगे, ठीक है। व्हेन टू डिस्चार्ज पेशेंट एंड 24 आवर्स ऑन होम मेडिकेशंस, ओरल प्रेडिसोलोन, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ये सारी ड्रग्स आपने ओरल दे के, आपको इंजेक्टेबल बंद करके आपने 24 आवर्स रखना है पेशेंट को। और मोर देन 70% ऑफ प्रेडिक्टेड पर्सनल बेस्ट PEF अगर आती है तो आपने, या वेरिएशन उसकी 20% से कम है तो आपने उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना है।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।